In the term of electrochemistry, when we are talking about reference electrode or standard electrode, already we did discussion on standard hydrogen gas electrode. That was a primary reference electrode. Calomel electrode is also a reference electrode, is a standard electrode because its potential is exactly known, but it is a secondary reference electrode. Hydrogen gas electrode was not portable, हैंडी नहीं था, प्रॉपरली एक हाथ में ऐसे प्रॉपरली इजीली हैंडल नहीं कर सकते थे. Calomel electrode is handy. See its construction. It consists of a glass jacket, simple glass jacket, having two side arm. This is one side arm and this is another side arm. It consists of glass jacket having two side arm. At the center, copper wire is immersed for electrical contact, which is sealed in a small glass tube. जिसको सील्ड किया है in a small glass tube. जिसको स्मॉल ग्लास ट्यूब में सील करके रखा है. यहाँ पर नीचे कोई प्लेट वगैरह नहीं है, कॉस्टली कुछ भी नहीं है. उसमें हम लोग डिसएडवांटेज में ये ऐड भी कर सकते हैं. कहां पर? इन केस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड जो हमने प्लैटिनम लिया था, दैट इज वेरी कॉस्टली, दैट इज वेरी कॉस्टली. बट यहां पर कॉपर वायर है, कोई नीचे हमने प्लैटिनम प्लेट अटैच नहीं की, सिंपल है. तो यहां पर एट द बॉटम इट इज फिल्ड विद पेस्ट ऑफ mercury and mercurous chloride, which is known as a calomel. At the bottom it is filled with paste of mercury and mercurous chloride. The remaining portion, जो बचा कुचा पोर्शन है, जितना भी बचा कुचा पोर्शन है, that remaining portion is filled with standard KCl solution. This is standard KCl solution. Standard KCl solution जिसका potential exactly known है, whose potential is exactly known, means ये जो स्टैंडर्ड केसीएल सॉल्यूशन है, ये 0.1 मोलर हो सकता है, 1 मोलर हो सकता है, नहीं तो सैचुरेटेड हो सकता है. अपर साइड आर्म ये भी केसीएल सॉल्यूशन ही है, एंड दिस टॉप पोर्शन is closed with the help of cotton plug, नहीं तो ग्लास वूल. कॉटन प्लग नहीं तो ग्लास वूल से ये हमने क्लोज कर दिया, एंड ये पोर्शन भी हम लोग क्लोज कर देते हैं स्टॉपर से, स्टॉपर लगा दिए. दिस वायर इज फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट. Simple construction of calomel electrode. It consists of glass jacket having two side arm. At the center, copper wire is immersed for electrical contact, which is sealed in a glass jacket. At the bottom, it is filled with paste of mercury and mercurous chloride,
जिसका नाम कैलोमिन। द रिमेनिंग पोर्शन इज filled with non-KCl solution which is either 0.1 molar, 1 molar और saturated, कुछ भी हो सकता है। This is the construction and see, आप इसको ऐसा होल्ड करके कहीं पर भी घुमा सकते हो। That means it is portable, it is easy to construct। and एक बात अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दो हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? अगर हमें दो हाफ सेल अगर जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग जिसकी मदद लेते हैं दैट इज अ सॉल्ट ब्रिज, दैट इज अ सॉल्ट ब्रिज। इन केस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड देखा कि आपने वहां पर सॉल्ट ब्रिज को इमर्स करना पड़ेगा, बट नोटेबल बात, in case of कैलोमिन electrode this upper side arm behaves as a salt bridge। ये जो अपर साइड आर्म आपको दिखाई दे रहे हैं behaves as a salt bridge। separate salt bridge is not required here while connecting this electrode with another half cell। सेपरेट की आवश्यकता नहीं है, इतना बेटर है कैलोमिन इलेक्ट्रोड। इसके वर्किंग की बात करते हैं हम लोग। एज लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड भी मे अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है नहीं तो रिडक्शन हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ another electrode connected with it। This electrode may undergoes oxidation or reduction, depends upon standard reduction potential of another electrode connected with it। फिर भी मान के चलते हैं if it undergoes oxidation, मान के चलते if it undergoes oxidation, क्या होगा अगर ऑक्सीडेशन अगर है? तो ध्यान दीजिए, अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है देन मर्क्यूरी लिक्विड पास इट्स कैटायंस इनटू द सॉल्यूशन लीविंग बिहाइंड इलेक्ट्रॉन्स। मर्क्यूरी अपने कैटायंस पास करेगा लीविंग बिहाइंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अरे लेकिन ये मर्क्यूरी के आयंस KCl में गए ना, पराया सॉल्यूशन। जैसे लीड एक्यूमुलेटर में Pb+2 H2SO4 में गए पराये सॉल्यूशन में, तो Pb+2 SO4 कंबाइंड हो गए, तो पराये अगर मिल गए तो कंबाइंड होते हैं। तो यहां ये Hg+2 प्लस दिस कंबाइंड विद Cl माइनस कहां से आए? KCl में से, और आपको क्या मिलेगा? Hg2Cl2 सॉलिड, ये कैलोमेल। इसलिए तो इस इलेक्ट्रोड का नाम कैलोमेल है, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड के कारण बैलेंस करता है। ट्वाइस है तो ये ट्वाइस लिखना पड़ेगा, तो ये ट्वाइस। ये दोनों रिएक्शन एज अ ऑक्सीडेशन करके हमने पढ़ा, लेकिन एक ही इलेक्ट्रिक रिएक्शन होनी चाहिए, तो दोनों को मैं कंबाइन करता हूं। तो Hg प्लस कैंसर, कंबाइन करने के बाद Hg प्लस कैंसर। अब Hg प्लस कैंसर अगर हो गए तो व्हाट रिमेन्स? ट्वाइस Hg लिक्विड प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव एक्वस, दैट गिव्स Hg2Cl2 solid plus 2 electron, thus it undergoes oxidation। इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन होता है। बट बेटा लोग ध्यान दीजिए, इसका ऑक्सीडेशन तो हुआ,
वहां हमने रिडक्शन पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में, वहां पर रिडक्शन पढ़े या ऑक्सीडेशन पढ़े, पोटेंशियल तो जीरो ही मिलने वाला था, विच इज आर्बिटरली टेकन, जबरदस्ती से, क्योंकि बहुत माइन्यूट होता है। यहां ऐसा नहीं है। हियर द पोटेंशियल ऑब्टेन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl 0.1 मोलर भी है, 1 मोलर भी है, सैचुरेटेड भी है। अब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का KCl ले सकते हो, तब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, भले ऑक्सीडेशन बढ़ाए हमने, मैं आपको डाटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में देता हूं। सर ऑक्सीडेशन करना है तो साइन चेंज करो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिस इज 0.3338 वोल्ट, 0.280 वोल्ट, 0.2415 वोल्ट। तो हम लोग ये चेंज कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl 0.1 मोलर, 1 मोलर सैचुरेटेड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो concentration is less, potential is more. Saturated means concentration is very high, potential is less. तो कितना पोटेंशियल मिलेगा ये concentration of KCl के ऊपर डिपेंड करता है। How to represent? We know in the notation of electrode or cell representation, if it is a single electrode, then in single electrode ions should be written first, then electrode. तो यहां पर आयंस कौन से हैं? यार आयन, अगर इसकी तरफ ध्यान अगर दोगे आप, तो आयंस शुड बी रिटन फर्स्ट। आयंस कौन से हैं? Cl नेगेटिव, एटमस, सिंगल वर्टिकल लाइन, is in contact with Hg2Cl2 solid, comma, mercury liquid, comma, platinum. ये आयंस है, Cl नेगेटिव आयंस, is in contact with Hg2Cl2, mercury and platinum, वायर बांधने के लिए। इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज कौन से है? इजी टू कंस्ट्रक्ट, बहुत आसान है बनाना। सेकंड, no separate salt bridge is required to connect with another half cell. Number 3, the concentration obtained is constant always. जो भी आपको वहां पर पोटेंशियल obtained is constant always, because ये पैक बंद है, तो यहां पर इवेपोरेशन, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने का कोई मेंटेनेंस का काम ही नहीं है। कंटिन्यूअस पोटेंशियल इज ऑब्टेन्ड। एक ही डिसएडवांटेज है इसका, एक ही डिसएडवांटेज है इसका जो आप आंसर दे सकते हो। इट्स डिसएडवांटेज इज कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड while determining potential of unknown electrode connected with it. इसके साथ दूसरा इलेक्ट्रोड जो अटैच होगा उसका पोटेंशियल अगर आपको निकालना है, तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के जमाने में 0 था तो कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं थी। यहां पर पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तब जाकर आपको अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मिलेगा। सो दैट इज अ disadvantage, and this is about the calomel electrode. Why it is called as calomel? Because of presence of Hg2Cl2, which is a calomel, and that's why it is a calomel electrode. So many alternative sources, are available for the electrical source. So
solar energy, tidal energy, wind energy. And the reason is that many more natural sources are going to end up. कोल खत्म होते आ रहा है और इसलिए अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस जनरेट करना इज द नीड ऑफ प्रेजेंट सिनारियो. एंड उसी का बेस्ट एग्जांपल है फ्यूल सेल. कितना मस्त होगा ना. अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा प्रमाण में है क्या? तो वाटर. वाटर इज H2O. कितनी बढ़िया टेक्निक है, ध्यान दीजिए. H2O, उसका डिकम्पोजिशन करो, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, दोनों फिर से कंबाइंड होंगे, दोनों बर्न होंगे, हाइड्रोजन बर्न होगा, ऑक्सीजन बर्न होने के लिए मदद करेगा, एंड वो कंबशन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबशन से डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी. ऐसे सेल को फ्यूल सेल कहते हैं. अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट कंबशन ऑफ फ्यूल is called as fuel cell. Hydrogen, oxygen burn, electrical energy is obtained, and output क्या है? Water. अभी जो पेट्रोल डीजल जब बर्न होते हैं, आउटपुट क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, which are the pollutants. बट इस फ्यूल सेल में आउटपुट क्या है? वाटर. हो सकता है फिर लोग चिल्लाने लगे, रास्ते पे फ्यूल सेल की व्हीकल्स दौड़ने के कारण रास्ता पानी पानी हो गया, बिकॉज वाटर वहां से बाहर निकलेगा, डिस्टिल्ड वाटर बाहर निकलेगा वहां से. वो फ्यूल सेल है. व्हाट इज फ्यूल सेल? वंस अगेन, अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट कंबशन ऑफ फ्यूल is called as a fuel cell. क्या है कंस्ट्रक्शन? See, it consists of a beaker, a vessel in which two graphite rod, दोनों के दोनों ग्रेफाइट रॉड है जो इमर्स किया. Two graphite rod which are incorporated with platinum, palladium as a catalyst. ग्रेफाइट रॉड है और उसमें मिक्सिंग किया गया प्लैटिनम और पैलेडियम का, जो एज अ कैटलिस्ट करके बिहेव करने वाले हैं. Through one of the electrode, हाइड्रोजन गैस इज पास. इसमें से H2 गैस पास करते हैं. हमारे सोचने के लिए हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोड का चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव. नेगेटिव मींस व्हाट? इट इज एनोड. सो दिस इलेक्ट्रोड इज बिहेव्स एज अ एनोड. मैंने कैसे सोचा? देखो, हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां चला जाएगा? नेगेटिव की तरफ. मतलब इलेक्ट्रोड नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एनोड. क्यों? गैल्वेनिक सेल है ये. थ्रू अनदर ग्रेफाइट ऑक्सीजन गैस इज पास्ड. ऑक्सीजन एंड दिस इलेक्ट्रोड बिहेव्स एज अ कैथोड. Both these electrodes, दोनों के दोनों electrodes are dipped in an electrolytic solution that is concentrated alkali like KOH. Concentrated alkali like KOH. And for your updated information for you, instead of concentrated KOH, आप मिथाइल अल्कोहल भी यूज कर सकते हो, CH3OH.
एज ए इलेक्ट्रोलाइट करके CH3OH यूज कर सकते हो। सॉरी, ये ऑक्सीजन के जगह पर मिथाइल अल्कोहल यूज कर सकते हो। ऑक्सीजन के जगह फ्यूल करके आप मिथाइल अल्कोहल यूज कर सकते हो। दिस इज सिंपल कंस्ट्रक्शन। लेट मी एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वंस अगेन। इट कंसिस्ट ऑफ वेसल containing 2 graphite rod which are mixed with platinum and palladium as a catalyst. Through one of the electrode, hydrogen gas is passed, which is acting as anode. Through another electrode, oxygen gas is passed, which is acting as cathode. These electrodes are dipped in strong electrolytic solution, that is concentrated alkali KOH. This is the construction of fuel cell. Let's see its working. When both the electrode connected externally with the help of metallic wire and hydrogen gas and oxygen gas pass through the inlet. दोनों इलेक्ट्रोड एक्सटर्नली मेटेलिक वायर से कनेक्ट किए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड में से पास किए, देन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। वो कैसे? तो रिएक्शन अगर आपको याद रखनी है तो आपको 4 OH निगेटिव याद रखना है। फ्यूल सेल की रिएक्शन को याद रखने के लिए 4 OH निगेटिव याद रखना है, रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगी। लेट्स गिव द हेडिंग व्हाट हैपन एट एनोड। दिस वन इज एनोड। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास, H2 गैस पास कर दी हमने, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होने वाला है हमको पता है, और मैंने कहा 4 OH निगेटिव, तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद OH निगेटिव कितने? 4 एटम्स कंबाइंड होगा एंड दैट विल गिव व्हाट इट गिव्स 4 OH। 4H अगर है, मैं ट्वाइस ले लेता हूं 4, इट गिव्स अ 4 OH 4H 4H2O plus 4 electrons. Thus, oxidation takes place at anode. Once again, when pure and dry hydrogen gas pass through the inlet, it combines with OH negative ions of concentrated alkali to form H2O with the loss of electron. This is oxidation. ये ऑक्सीडेशन हुआ। At cathode, as usual, गैल्वेनिक सेल में कॉमन लाइन है, एनोड से कैथोड लिखते तब कि इलेक्ट्रॉन्स which are set free at anode then transfer to cathode. Electrons which are set free at anode then transfer to cathode, where reduction takes place. Pure oxygen gas is passed. This oxygen gas O2 combined with water जो उधर से है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और हमें याद क्या रखना है? 4 OH नेगेटिव। बैलेंस करते हैं, H2 है यहाँ पर, 4 है, मैं यहाँ पर ट्वाइस लिखता हूं, रिएक्शन इज बैलेंस। रिएक्शन बैलेंस हो गई, 2 2 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 10 इट अंडरगोज रिडक्शन। इस तरह से इसका रिडक्शन हुआ। एंड वी नो नेट सेल रिएक्शन इज द सम ऑफ 2 हाफ सेल रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन को फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहीं पर बता रहा हूं, फिर से लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है। मैंने फिर से यहां पर लिखने के बजाय मैं यहीं पर आपको समझाता हूं। लेट मी ऐड दिस टू
जब दोनों को ऐड करो तो 4 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल्ड, 4 OH नेगेटिव गेट कैंसल्ड, यहाँ 4 H2O है, यहाँ 2 H2 है, तो कैंसल, इसके जगह बचेंगे 2. And therefore, what is the net cell reaction? It is twice H2 gas plus O2 gas that gives twice H2O liquid. This is net cell reaction. Means hydrogen gas burn, oxygen support in burning, and the byproduct is water, which is non-pollutant. This is the net cell reaction, and when the cell reaction is over, potential of 1.23 volt is obtained. यहाँ पर जो पोटेंशियल मिलने वाला that is 1.23 volt potential is obtained. Now the last point from this one, how to represent anode. So support is platinum, H2 gas, KOH aqueous which is concentrated, single vertical line, O2 gas, comma platinum. This is the representation, and here also we are not giving salt bridge. Why? क्योंकि एनोडिक सॉल्यूशन भी यही है और कैथोडिक सॉल्यूशन भी वही है, करके हमने वहां पर सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया. सर इतना अच्छा अगर ये सेल है तो उसको यूज में क्यों नहीं ला रहे? सम डिसएडवांटेजेस आर देयर. नंबर 1, difficult to get pure and dry hydrogen gas. Number 2, hydrogen gas is very explosive. यानी कई बार एक्सीडेंट अगर ये सेल की व्हीकल से हुआ तो वो व्हीकल के साथ आजू बाजू वाले भी गड़बड़ करने के चांसेस है. प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस मिलना डिफिकल्ट है. हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव. नंबर 3, बिग स्टोरेज इज रिक्वायर्ड टू स्टोर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल. कारण जब तक फ्यूल चलते रहेगा तब तक व्हीकल चलते रहेगा. तो बिग storage is required to store hydrogen and oxygen fuel. These are the main disadvantages. Pure and dry H2 मिलना डिफिकल्ट है, हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव है, एंड स्टोरेज बहुत बड़ा रिक्वायर्ड है. बट इसके एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इट इज इको फ्रेंडली, इकोनॉमिक फ्रेंडली, इको एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ये, इको फ्रेंडली. नंबर 2, इट इज नॉन पोल्यूटेड, पोल्यूशन नहीं होता इससे. नंबर 3, इफिशियंसी इज 70%. जो आउटपुट एफिशिएंसी इसकी 70% है, व्हाइल जो थर्मल है पावर प्लांट उसकी एफिशिएंसी है 40%. इसकी करंट एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज 70% एंड थर्मल पावर प्लांट जो रहता है उसकी करंट एफिशिएंसी 40%. जो एडवांटेज है. यूज कहां करते हैं? एज अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स करके यूज कर सकते हैं. नंबर 2, इट इज यूज एज अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स इन स्पेसक्राफ्ट. स्पेसक्राफ्ट में जो लोग जाते हैं ना तो उनके पास फ्यूल सेल होता है. वो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो देता ही है, बट उसका जो H2O बाय प्रोडक्ट है दैट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. यानी देखो किसी व्हीकल से निकला हुआ आउटपुट ये कंज्यूम करने के पर्पस में भी काम आ रहा है. These are the uses of fuel cell. This is construction, working, potential, representation, advantage, disadvantage, and uses of fuel cell. But what is fuel cell?
a device in which electrical energy is obtained by direct combustion of fuel is called as a fuel cell, and this is really the environment friendly, eco-friendly, non-polluted device. EMF series, electrochemical series. EMF stands for electromotive force series. क्या है EMF सीरीज? एक्चुअली चार्ट है, एक साइड में इलेक्ट्रोड है एंड दूसरे साइड में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है. इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन. जैसे सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट, हाइड्रोजन का 0.0 वोल्ट. एंड देन और नीचे चलते हैं हम लोग, तो आयरन की बात करूं तो -0.40 वोल्ट, जिंक की बात करूं -0.76 वोल्ट, मैग्नीशियम की बात करूं -2.04 वोल्ट. यानी अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? Elements are arranged systematically in the decreasing order of their standard reduction potential. उसे EMF और electrochemical series कहा जाता है. What is EMF or electrochemical series? The series in which elements are arranged systematically in the decreasing order of their standard reduction potential is called as EMF or electrochemical series. Elements which are present at the top of the series are having higher standard reduction potential. जो टॉप में है their reduction potential is high and therefore they undergoes reduction. इसलिए उनका रिडक्शन होता है and as they undergoes reduction they are acting as a oxidizing agent. They are acting as an oxidizing agent. While elements which are present at the bottom of the series are having lower standard reduction potential, and therefore they undergoes oxidation. And they are acting as a reducing agent. In this EMF series, standard hydrogen gas electrode is placed in between, above which the standard reduction potential is positive, and below standard hydrogen gas electrodes are having negative standard reduction potential. This is one of the paragraph for EMF series or electrochemical series. The series in which elements are arranged systematically in the decreasing order of their standard reduction potential is called as EMF or electrochemical series. Elements which are placed at the top are having higher standard reduction potential, hence they undergoes reduction and acting as oxidizing agent.
while elements which are present at the bottom of the series are having lower standard reduction potential. Hence they undergoes oxidation and acting as a reducing agent. Electrodes above standard hydrogen gas electrode are having positive standard reduction potential, while electrode below standard hydrogen gas electrode are having negative standard reduction potential. This is nothing but a paragraph for EMF series or electrochemical series, and this is nothing but about आज के टाइटल के बारे में हमने पढ़ा, that is a calomel electrode. Then we did discussion on fuel cell, and this one is the EMF or electrochemical series, which is from electrochemistry.